अगर आप मेरा बिल्कुल निष्पक्ष और ऑनेस्ट आंसर जानना चाहिए तो वो ये है कि 45 दिन में नरेंद्र मोदी ने कश्मीर की खोज खबर नहीं ली, एक भी परिवार से नहीं मिले। कानपुर किसी कार्यक्रम में गए तो एक शहीद परिवार से मिल लिए। उन्होंने घायलों की कोई जांच नहीं करी। वो न पहलगाम गए न पुंछ गए। वो बिहार घूम रहे थे, आंध्र प्रदेश घूम रहे थे, केरल घूम रहे थे, मुंबई घूम रहे थे, राजस्थान घूम रहे थे, गुजरात में रैली कर रहे थे। फीता काटने का अगर वक्त आएगा तो नरेंद्र मोदी हर जगह जाएंगे। वो 2 साल से मणिपुर नहीं गए। अब मेरा यह ठोस विश्वास है कि अगर मणिपुर में फीता लगाकर उनको इनॉग्रेशन के लिए बुलाया जाए तो शायद वो चले जाएंगे। मैं पिछले दिनों भारत सरकार ने जो डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व प्रवक्ता को अपनी रणनीतिक टीम में शामिल किया था, अब जबकि पाकिस्तान ने भी ट्रंप सरकार के ही पूर्व अधिकारी को अपने लॉबिंग के लिए नियुक्त किया है। मुझे लगता है पाकिस्तान की जिस तरह से स्वागत अमेरिका में किया गया, जैसे पाकिस्तान का डेलीगेशन जाकर अमेरिकन बड़े बड़े लोगों के सामने बैठकर अपनी बात कर रहा है, बिलावल भुट्टो 45 मिनट तक यूएन में खड़ा होकर हमारे खिलाफ जहर उगल रहा है, पाकिस्तान के साथ डील्स की जा रही हैं, पाकिस्तान को जो हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं उनके साथ डील करी जा रही है, आतंकी मुल्क पाकिस्तान के नेताओं को महान बताया जा रहा है, उनके प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री को तटस्थ जगह पे बात करने की बात कही जा रही है, डिनर पे भेजा जा रहा है। ये अपने आप में हमारी फॉरेन पॉलिसी की विफलता है कि आप इस तरह की बातें रोक क्यों नहीं पा रहे हैं। ये विफलता है हमारी। Ma'am, the stampede incident which has taken place in Bangalore, now the Karnataka government has suspended the police commissioner there and many of the other top officials as well. But the BJP is saying that this is basically a state-sponsored, man-made disaster which has taken place, and it is basically the Karnataka government which is responsible for this. How do you say? Quite frankly, I don't want to politicize a tragedy as big as that. My heart goes out to those people who were out celebrating and who instead ended up losing their lives. I think no amount of condolence is enough for those families. And the reality is that without wasting any time, our senior leadership said in an unequivocal tone that human life is more precious than any win, any celebration. And protocols need to be revisited if need be. I don't want to draw parallels. I don't want to do petty politics, but I do want to say here, I was very touched by the sensitive way in which the Karnataka government and the Karnataka chief minister and the deputy chief minister and our leaders handled this issue. They did not disappear for 18 hours. They did not indulge in blame game. They accepted their mistake. They mourned with the people. They were seen in hospitals. They were looking at relief work. They were looking at safe rescue of people where there were large crowds. And they did not mince their words. They did not reward officers who were responsible. They were punished. They were shunted out. They were suspended. And that's what a sensitive government does. To my mind, I don't want to draw parallels, but if the BJP really wants to indulge in politics, I might want to turn around and ask, where were you when the chief minister of Uttar Pradesh disappeared for 18 hours after the stampede, where 36 people lost their lives? Why was the Uttar Pradesh government trying to conceal and trying to cover up a second stampede that had happened? What about the 121 lives that were lost in the Hathras stampede? What about the stampede that was caused at the New Delhi railway station? Where was Ashwini Vaishnav making reels? He did not even care to visit that place. Where was he when Balasore happened? Whose resignation were you asking for when Morbi bridge collapsed in Gujarat and little children died? Over 140 people, if I'm not wrong. I don't think we need to politicize this. I don't need to think we need to play petty politics on it. I am extremely aggrieved with the loss of lives, and I'm reasonably certain that the government will compensate and the government will continue to stand with people who have suffered. There can be no greater tragedy than being out to celebrate and losing your life. मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस पर तुच्छ राजनीति नहीं करना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इससे दुखद और क्या होगा
कि आप अपनी टीम के सेलिब्रेशन के लिए बाहर निकले और वहां पर स्टैम्पीड हुई और लोगों की जान चली गई। मुझे नहीं लगता इससे दुखद कुछ हो सकता है। आपकी कितनी संवेदना, आपकी कितनी श्रद्धांजलि उन लोगों को वापस नहीं लाएगी। ये दुखद है। कर्नाटका की सरकार ने इस पे सहानुभूति जताई और जिस संवेदना से इस पूरे मामले को उन्होंने हैंडल किया, वैसा ही करना चाहिए था। उन्होंने गलती मानी, उन्होंने चूक मानी, लोगों के साथ वो उनके दुख में खड़े हुए। वो 18 घंटे के लिए गायब नहीं हुए। वो अस्पतालों में मृतक परिवारों के साथ रहे, घायलों को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया, लोगों को वहां से सेफली रेस्क्यू कराया। बहुत भीड़ थी वहां से। और उसके बाद जो एक्शन लेना चाहिए था, जो लोग रिस्पॉन्सिबल थे उनके खिलाफ एक्शन लिया गया, उनको रिवॉर्ड नहीं दिया गया जैसा कि यूपी में किया गया था। मैं ब्लेम गेम में नहीं पड़ना चाहती हूं, मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूं कि मैं इस पे ब्लेम गेम करूं, लेकिन अगर बीजेपी इस तरह की बातें करेगी तो फिर सवाल उठेंगे ना। सवाल उठेंगे कि 36 लोगों की मौत हो गई थी कुंभ में, 18 घंटे तक मुख्यमंत्री कहां थे, दूसरी जगह पर क्यों लिपापोती की जा रही थी, हाथरस की स्टैम्पीड का क्या हुआ, मुख्य अभियुक्त तक नहीं बनाया आपने, मोरबी में इतना बड़ा कांड हुआ, हादसा हुआ, क्या किया आपने गुजरात के चीफ मिनिस्टर के साथ, रेलवे स्टेशन पर स्टैम्पीड हुई, क्या रेल मंत्री ने इस्तीफा दिया, क्या बालासोर के बाद इस्तीफा दिया। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो बंगलौर में हुआ है और इस पर जो मेरे नेतृत्व ने बोला है कि किसी भी जश्न से ज्यादा ह्यूमन लाइफ जरूरी है, सुरक्षा जरूरी है, सेफ्टी जरूरी है, और अगर प्रोटोकॉल्स को दोबारा से रिविजिट करना पड़े तो वो भी करना चाहिए।